Good morning, all of you. Welcome to online classes of Lal Public School. I'm Pooja Sharma, your EVS teacher. And today we will discuss our chapter number 5 of EVS, and chapter name is Let's Play Games. So let's start. Various types of games. In Rajasthan, many games are played in different ways in different parts of the state. There are some traditional games which can be played very easily without much ads, like Mardari, Sitolia, Gilli Danda, Chupa Chupi, Pakda Pakdi, etc. Other games like Char Bar, Chopper, Sing Bakri, Astachanga, etc. are indoor games which are full of fun and can be played very easily sitting on चबूतरी आंगन. ओके सो राजस्थान में डिफरेंट काइंड्स के जो गेम है डिफरेंट पार्ट्स हैं राजस्थान स्टेट के, वहां पर प्ले किए जाते हैं. ओके एंड ये जो गेम्स हैं ओके बहुत ही इजीली खेले जा सकते हैं विदाउट मच एड्स. ओके इसको खेलने के लिए बहुत ज्यादा आपको कोई इक्विपमेंट्स है, लाइक जैसे आप बैट बॉल खेल रहे हैं तो उसमें आपको बैट एंड बॉल का रिक्वायरमेंट होगी. बट ये कुछ गेम ऐसे हैं जिनमें आपको खेलने के लिए बहुत ज्यादा एड या आपको थिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके सो हियर आर नेम ऑफ सम गेम्स. ओके ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल special sports are being organized in different regions. For example, on the occasion of Makar Sankranti, Sitolia in Mewar, kite flying in Wangad, मारवाड़ एंड ढूंढाड़ एक्सेट्रा. ओके ये राजस्थान के डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनका एक एरिया वाइज ओके रीजन के अकॉर्डिंग उन्हें ये नाम दिए गए हैं. ओके लाइक मेवाड़ है, वांगड़ है, मारवाड़ है. ओके इसमें इन एरियाज में कुछ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए गए. ओके एंड उस एरिया को क्या नाम दिया गया, डिफरेंट नेम दिए गए. ओके तो इन डिफरेंट एरियाज में मकर संक्रांति का जैसे जो ओकेजन होता है तो मेवाड़ में सितोलिया खेला जाता है. ओके गेम जो है प्ले किया जाता है. एंड जो अदर एरियाज हैं लाइक वांगड़, मारवाड़ एंड ढूंढाड़, यहाँ पर काइट फ्लाइंग का जो फंक्शन फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है. ओके नाउ थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Which games are played in your village or city? ओके आपको यहाँ पर अपने विलेज में खेले जाने वाले जो गेम्स हैं या सिटी में आप रहते हैं तो आपके जो भी गेम्स हैं आप उनके नेम बता सकते हैं. ओके लाइक विलेजेस में मरदारी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, ओके पकड़ा पकड़ी एक्सेट्रा आर प्लेइंग इन विलेजेस. ओके इस तरह के जो गेम है वो विलेजेस में प्ले किए जाते हैं. ओके एंड इन सिटीज there are chess, kabaddi, hockey, table tennis, badminton, etc. okay are played in cities. Next one is which game do you like to play? So यहाँ पर आप जिस गेम को भी प्ले करते हैं उसका नेम आप बता सकते हो. okay it answer may be vary okay person to person. I like play to badminton. okay so same like this you can this answer according to your which game you like. Now next is discuss and try to know that which games the elderly person in your home or neighbor played during their childhood. okay आपके होम पे घर पर या आपके नेबरहुड में जो आपके elderly person है like your grandmother, grandfather okay और your जो आपके अंकल्स हैं okay वो किस तरह के जो गेम्स प्ले करते थे अपने चाइल्डहुड में. like in elderly the elderly persons in our home played during their childhood Mardari, Sitolia, Gilli Danda, Chupa Chupi and Pakda Pakdi etc. Okay. Now look at the following figure and discuss about them. There are some games. यहाँ पर आपको कुछ गेम शो किए गए हैं like billiards, chess, archery, kabaddi and wrestling. Okay. Hockey, table tennis and badminton. Now next question is which games are being played in the above picture? So in the above picture archery, kabaddi, wrestling, hockey, table tennis, badminton are being played in the picture. In kabaddi how many players are there in one team? So in kabaddi there are 9 players in one team. एक टीम में कितने players होते हैं? 9 players होते हैं. Clear? Next one is
Which games are played in an open ground? कौन से गेम्स हैं जो कि हम ओपन ग्राउंड में खेल सकते हैं? So कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल etc. are played in an open ground. Okay. Next one is which games are played in a room or covered space? कौन से गेम हैं जो कि आप एक रूम में या फिर covered space में खेल सकते हैं? So billiards, chess, table tennis, ludo etc. are played in a covered space or in a room. Clear? When more than one player play together, a feeling of mutual cooperation is generated and it helps in the development of the sportsman spirit. Okay, जब आप एक ही टीम में बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं, okay, तो आपसी म्यूचुअल कोऑपरेशन मींस आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, okay, जब प्ले करते हैं, then it help in the डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. ये स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है उससे क्या करती है, डेवलप करती है. मींस एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग वन सक्सेस विदाउट फेलियर और सक्सेस. ओके, किसी भी जो अनदर पर्सन है उसकी चाहे वो फेलियर हो रहा है या सक्सेस हो रहा है, उसको आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. ओके, जिसे हम बोल सकते हैं खेल की भावना. बिकॉज गेम है तो बट नेचुरल है, एक टीम विन करेगी तो दूसरी टीम लूज करेगी, है ना. तो इसमें बट जब आप एक टीम की तरह मिलकर एक साथ खेलते हैं तो आप में जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेल की जो भावना है, वो डेवलप होती है. ओके, एंड आपस में आप म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे को हेल्प करते हुए गेम को क्या करते हैं, प्ले करते हैं. The games which are played in an open ground are called outdoor games, and those which are played in a room or covered space are called indoor games. Okay, ऐसे गेम जो कि ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं उन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं, and the games which are played in a room or covered space are called indoor games. Okay, and ऐसे गेम जो कि रूम्स में या फिर कवर स्पेस में खेले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडोर गेम्स. Nowadays, after the telecast of the matches of Kabaddi on Doordarshan, it is becoming a very popular sport. Okay, and आजकल जो दूरदर्शन है उस पे जो टेलीकास्ट होने लगा है कबड्डी के मैचेस का, जिससे कि जो कबड्डी है वो बहुत ही पॉपुलर और फेमस गेम बन गया. ओके, ये एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं. आजकल तो हम लोगों के दूरदर्शन जो चैनल है हम देखते नहीं है. ओके, बट इन एंशिएंट टाइम में जो आपके एल्डर पर्सन है आपके घर पे, लाइक ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, एल्डर अंकल है ना, वो सब उनके टाइम पर जो दूरदर्शन है वो टेलीकास्ट करता था, मींस टेलीविजन पे मैच को दिखाता था. ओके, कबड्डी के मैचेस को. तो उन दिनों में जो कबड्डी है वो एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स या फिर गेम था. We can see children playing kabaddi on streets or ground of many localities. Okay, और हम बहुत सारी localities में, एरियाज में बच्चों को गलियों में या ग्राउंड्स में कबड्डी खेलते हुए देख सकते हैं. At some places they are seen playing cricket also, and कुछ जगह पर आप बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए भी देख सकते हैं. Although a very big playground is required to play cricket, but children are seen playing it even on small pieces of land. Okay, जो क्रिकेट गेम है उसे खेलने के लिए वैसे तो बहुत बिग प्लेग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको आप छोटे पीसेस लैंड पर, मींस थोड़ी सी जो जगह है, स्पेस है, वहां पर भी आप उन्हें खेलते हुए देख सकते हैं. These days people have become very much aware of their health. Therefore yoga is also very popular among them. Okay, और आजकल जो लोग हैं, पीपल हैं, अपनी हेल्थ के लिए बहुत अवेयर हो गए हैं. ओके, जागरूक हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर वो अवेयर हैं. सो दैट्स व्हाई योगा इज आल्सो वेरी पॉपुलर अमंग देम. आजकल जो योगा है वो भी लोगों के बीच में क्या हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है. Come let's know something about yoga also. चलिए हम योगा के बारे में कुछ जानते हैं. So here is steps of सूर्य नमस्कार. ओके, योगा में सूर्य नमस्कार करना सिखाया जाता है, जिसमें कि डिफरेंट जो सूर्य नमस्कार हैं उसके यहाँ पर स्टेप शो किए गए हैं इन द पिक्चर. ओके, now next one is yogasan. Look at the picture above and as per the instructions of your teacher about some yogasans, try to practice some asan of yoga. For example, Tadasan, Padmasan, Pavan Muktasan and Surya Namaskar. It is a group of many asanas. Okay, यहाँ पर हम different
जो योग में हम डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, आसन लेते हैं, मीन्स हमारे जो पोस्चर हैं बॉडी के, ओके, तो उन बॉडी पोस्चर्स को ही हम क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पोस्चर की प्रैक्टिस करवाई जाती है। सो यहाँ पर कुछ यहाँ पर आसन्स हैं, लाइक तड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन एंड सूर्य नमस्कार, ओके। एंड इन सूर्य नमस्कार में वी हैड ऑलरेडी सीन कि यहाँ पर आपको ये देखिए आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर हैं या आसन है, ओके। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ आसन, बहुत सारे आसन जो है उन्हें मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, उसे सूर्य नमस्कार कहा जाता है। So in the Ashtanga Yoga of Rishi Patanjali, there is an assimilation of Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharna, Dhyan and Samadhi, okay? तो यहाँ पर जो ऋषि पतंजलि थे, okay, उन्होंने अपना अष्टांग योगा का जो एक फॉर्मूला दिया था, okay? तो वो जो अष्टांग योगा था उसमें ये 8 टाइप के जो योगास हैं ये मिलकर उसे क्या करते हैं, बनाते हैं, ओके। लाइक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान एंड समाधि, ये सभी चीजें जो मिलकर हैं वो अष्टांग योगा को क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं। Meditation is very important for an overall development of the student. Same like this, जो meditation है जिसे हम ध्यान कहते हैं, ओके, अपने माइंड को बिल्कुल पीस रखने के लिए किया जाता है मेडिटेशन, तो ये भी स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। This leads to the development of an art of living and develop a positive approaches toward life, okay? जो मेडिटेशन है वो क्या करता है, हमें आर्ट ऑफ लिविंग में जीने का तरीका, कैसे जीवन को, अपनी जिंदगी को जिया जाए, वो आप में डेवलप करता है, आर्ट ऑफ लिविंग डेवलप करता है एंड आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच को भी डेवलप करता है। योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ओके। सेम लाइक दिस, जो योगा है वो भी आपके डिफरेंट टाइप के जो डेवलपमेंट है उसमें आपकी हेल्प करता है, लाइक आपके फिजिकल मीन्स आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, ओके, रिलेटेड टू बॉडी, आपके बॉडी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है। मेंटल मीन्स माइंड रिलेटेड, ओके, रिलेटेड टू माइंड, आपके माइंड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उसके डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करता है। इंटेलेक्चुअल मीन्स आपकी रिलेटेड टू रिलीजन, ओके, आपके रिलीजन से, धर्म से जो रिलेटेड है, ओके, उससे आपकी जो इंटेलेक्चुअल है मीन्स आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि है, आपकी बुद्धि से जो रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है उसमें योगा आपकी हेल्प करता है। ऑल्सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मीन्स रिलेटेड टू ह्यूमन सोल्स, हमारी जो आत्मा से रिलेटेड, हमारी सोल से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसमें भी जो योगा है हमारी हेल्प करता है, ओके। Now here is point for discussion. How do you feel doing योगासन आफ्टर द प्रेयर इन असेंबली, ओके। हमारे स्कूल में असेंबली में प्रेयर करवाई जाती है, उसके बाद में हमें क्या करवाया जाता है, योगासन करवाया जाता है, योगा करवाया जाता है, तब हम कैसा फील करते हैं। सो वी गेट अ पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल फीलिंग आफ्टर डूइंग योगासन, ओके। जब भी हम योगासन करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव हमें फीलिंग आती है, ओके, एंड स्पिरिचुअल, ओके, दैट इज बिलोंग टू ह्यूमन सोल स्पिरिट, ओके। तो इस तरह की पॉजिटिव फीलिंग आती है हमें जब भी हम क्या करते हैं, योगासन करते हैं। If you have any experiences regarding yoga education, then narrate them in the class, okay? अगर आपको योगा से रिगार्डिंग जो भी आपके पास में एक्सपीरियंस है, ओके, योगा एजुकेशन आपने लिया है, इसके लिए भी आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, ओके। आप डायरेक्टली जाकर सीधा योगा खुद करना शुरू नहीं कर सकते एंड दूसरों को सिखा भी नहीं सकते, ओके। अगर आप टीच करना चाहते हैं कि ये जो आसन है कैसे किए जाते हैं, तो उसके लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ओके। तो इस योगा एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर आपके पास में कुछ एक्सपीरियंस है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं कि योगा आपकी किस चीज में हेल्प कर सकता है। सो योगासन मेक अ मैन स्ट्रॉन्ग, जो योगासन है वो एक मैन को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड डूइंग योगासन डेली अ पर्सन कैन लीड अ हेल्दी लाइफ फॉर लॉन्ग, ओके। अगर आप डेली योगासन करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। एंड योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ओके। योगा हमारे डेवलपमेंट में भी हमारी हेल्प करता है। Now next is why should we do yoga? हमें योगा क्यों करना चाहिए? So yoga leads to the development of an art of living, and it's also develop a positive approach towards life. So it is very important for an overall development of a person. Yoga is also helpful in physical, mental, intellectual and spiritual development.
Clear? So our next topic we will continue in our next class.